Hi, good evening, everyone. I hope Very I'm good audible. evening. Very good evening, very good evening. Okay. So let's start with today's class, guys. So आज की क्लास जो है बेसिकली ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर है. ओके. ह्यूमन रिसोर्सेज जनरलिस्ट एग्जैक्टली प्रोफाइल क्या होता है, व्हाट इज एग्जैक्टली ह्यूमन रिसोर्सेज. ओके. एंड also understanding how important human resources is in the organization. All right. So कौन कौन है आज के क्लास के लिए एग्जैक्टली, कैन आई जस्ट हैव अ लिटिल ब्रीफ अबाउट यू गाइस. तो गाइस वुड वांट टू नो कि क्या है आप लोग का बैकग्राउंड एंड एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि व्हाई हैव यू ऑल चोजन ह्यूमन रिसोर्सेज कोर्स, सो दैट आई हैव अ लिटिल अपडेट. मुझे थोड़ा आइडिया रहेगा आप लोग के बारे में. Okay, this is Abhishek. I'm from Odisha. So I have around 7 years of experience in the HR, only like in recruitment. ओके. So that's also my side. ओके. So what are your goals? What do you plan to learn through this course, Abhishek? I want to plan for the journalist as well as payroll part. So that's why. Okay, generalist and In payroll gen- part. and I have a question. So like in journalist, what exactly coming? Like onboarding, exit formalities, like that, or anything else? I'm confused like that. Okay. And okay, so Abhishek, you are in which industry? IT, non-IT both. अच्छा, आप आईटी नॉन आईटी बोथ के लिए रिक्रूटमेंट करते हो बेसिकली, राइट? Yeah, yeah. Yes. ओके. ऑल राइट. ठीक है. ठीक है गाइज. गाइज, जस्ट इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, माई नेम इज हीना सुरेश. So I have been an HR generalist and an HR professional for the past 10 years now. Okay. I'm currently also working. Okay. So I have had experience into this profile for almost 10 years with first the hospitality industry, then the IT industry for some time, and then currently in the education industry. So, and I have been training many students like you guys, okay, in payroll, in compliances, as well as in the generalist profile also for the past 2.5 years. So, definitely through this course, it's like basically, अगर आप human resources generalist का profile समझो, so it's like, through this profile and through this course, you will understand that it's like HR work is not related to only recruitment or making salaries. Okay. That is what people usually feel कि HR का काम है, तो it's like recruitment, payroll, it's going to be limited to that only. Okay. However, that is not the case. There are a lot of things that, when I talk about HR generalist profile, ऑन डे टू डे बेसिस बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है दैट एन HR नीड्स टू फुलफिल. अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, आपका एम्प्लॉय स्ट्रेंथ क्या है वहां पे, ठीक है. एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग दैट in that particular organization, what are the different HR departments that you have. सो वो चीजों पे भी बहुत मैटर करता है कि आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है. ऑलराइट. स्टार्टअप कंपनी की अगर आप बात करो, या आप अगर एमएनसी की बात करो, या स्मॉल साइज्ड कंपनीज की बात करो, सब में यू विल सी दैट द एचआर का जो रोल है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है एक दूसरे से. आई मीन कोर फंक्शंस जो हम बोलते हैं एचआर के, यू विल सी इट इज द सेम एवरीवेयर, राइट? द कोर फंक्शंस बीइंग द सेम एवरीवेयर. However, if I talk about, the roles and responsibilities जो एक HR को fulfill करती पड़ती है, that is quite different from one to the other. All right. Definitely in small organizations, you will see that HR is more into performing all functions. So generalist profile वहां पे ऐसा हो जाता है कि she's taking care of everything from A to Z. Employee life cycle जो हम बोलते हैं, she takes care of the entire employee life cycle. However, अगर मैं वही बड़ी कंपनीज की बात करूं जैसे कि एमएनसीज या बिग ऑर्गेनाइजेशंस, so there the HR role is limited to her department only. So there you will not see एक ही HR है और सब काम कर रहे हैं. That is not even possible बिकॉज वहाँ एम्प्लॉय स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है फर्स्ट ऑफ ऑल. सो डेफिनेटली यू विल सी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, डिपार्टमेंट डिवाइडेड होते हैं. जैसे कि रिक्रूटमेंट का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, पेरोल का वी हैव अवर ओन डिपार्टमेंट, वी हैव ओन डिपार्टमेंट जो ट्रेनिंग्स देखती है, ठीक है. सो कैसे होता है एचआर के, अगर आप बोलोगे 10 फंक्शन है, तो हर एचआर को 2 to 3 फंक्शन उसके उसका काम होता है विच ही नीड्स टू टेक केयर. जैसे कि रिक्रूटमेंट होने दो, देन यू हैव
मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, एंड देन यू टेक केयर ऑफ द ऑनबोर्डिंग. तो ये तीन चीजें आप देखोगे एक एचआर देखती है. देन व्हेन वी टॉक अबाउट परफॉर्मेंस अप्रेजल ट्रेनिंग, सो दिस इज समथिंग दैट एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ये आप देखोगे कि एक एचआर का फंक्शन है. सो ऐसे हर एचआर होते हैं जिनके 2 से 3 काम होते हैं जो डिवाइडेड होते हैं, दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन दैट. ऑलराइट. प्लस यू विल सी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, अगर एचआर का काम 2 से 3 चीजों में डिवाइडेड होता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में, इट्स लाइक दे नीड टू नॉट ओनली फोकस ऑन दैट. और वो एक एचआर नहीं होती है वहां पे. जैसे कि अगर आप रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट में बोलोगे तो देर आर 10 HR हु आर जस्ट डूइंग रिक्रूटमेंट. वो डिपार्टमेंट में उनके पास 10 HR होंगे. वही आप एम्प्लॉय एंगेजमेंट वगैरह बोलोगे तो वहां पे 10 HR होंगे. सो इट्स लाइक ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिक काम है वो एचआर का विच दे आर टेकिंग केयर ऑफ. दैट्स हाउ इट वर्क्स. ओके. सो दैट्स व्हाई इफ आई टॉक अबाउट मैं अगर नॉर्मल जनरलिस्ट की बात करूं, सो ऐसा नहीं है कि जनरलिस्ट का भी काम सब जगह एक जैसा होता है. इट्स नॉट रियली दैट. ओके. सो इट्स लाइक डिफरेंट एवरीवेयर. हर जगह बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है इफ आई टॉक अबाउट एचआर जनरलिस्ट प्रोफाइल. ऑलराइट. एज एन एचआर यू शुड डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट इन दिस कोर्स, जो हम ये कोर्स समझेंगे, इम्पॉर्टेंट ये होगा कि आप कोर फंक्शन समझ जाओ एचआर के. एचआर के कोर फंक्शंस क्या है एज एन एचआर. भले आप कोई भी इंडस्ट्री में चले जाओ, कोई भी कोई भी टाइप के सेटअप में चले जाओ, इफ यू आर अवेयर ऑफ द कोर फंक्शंस, ओके, इफ यू आर अवेयर कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कोर फंक्शंस क्या है एचआर के, then definitely in that case it's not going to be very tough for you. ठीक है. So definitely in that case आप कोई भी setup में चले जाओ, you will definitely be able to work and you will be able to manage. Okay. So I think that should be the main role. That's the reason I wanted an introduction from you guys. Actually, I wanted to know how many of you all are currently from the HR background. So guys, आप लोग में से कौन already HR background में है? Can you all raise your hands if you all cannot unmute yourself? So I think only Abhishek is one who told me that he's from the HR background. What about the others, guys? आप लोग में से कौन HR background के हैं already existing working as an HR? Can you raise your hand? Yes, ma'am. I'm also HR background. Okay. What is your experience like, Mr. Vipul? Ma'am, 2 years. Where are you working? Which industry you're working and what is your profile there? IT and engineering. BVDN groups. Currently working on BVDN groups. और क्या profile है आपका वहाँ पे? As a executive HR. Executive HR. Okay. Exactly are you expecting from this course, Mr. Vipul? And basically compliance, payroll. Okay. Payroll is basically something that you're looking out for, right? Yes, ma'am. Okay. All right. ठीक है. What about the others, guys? Anyone else? So we have only 2 people here who are from the HR background. ठीक है. Okay. So definitely, guys, as you all said, compliance, payroll तो definitely बहुत important role होता ही है HR का. Definitely, it's a very important part. All right. And plus, of course, payroll, as I told you, totally depends on how Mr. Vipul is a executive. So, Mr. Vipul, payroll तो आपका already आपके duties and responsibilities में आता होगा then? Is it a part of your duties and responsibilities? I'm currently handling all time office, like daily attendance and final attendance. अच्छा, आप अटेंडेंस मैनेजमेंट करते हैं currently. Reports. Yes. ठीक है. ओके. एंड यू आर मेकिंग पेरोल ऑल्सो अटेंडेंस मैनेज करने के बाद? No. Bank compensation teams अलग है मैम हमारी. अच्छा, अलग टीम. ओके. ऑलराइट. Yes. That's why I was telling you guys कि this is a very common thing you will see कि in different organizations there is a different kind of structure. बहुत organizations में ऐसा होता है कि attendance management and then payroll की अगर हम बात करें, compliances, अगर हम generalist profile की बात करें तो then the HR takes care of everything. So usually you will see small या medium sized या startup companies में ऐसा setup रहता है that if you have an HR, she takes care of everything. Okay. Otherwise you have like every organization में executive levels रहते हैं जो basically attendance manage करते हैं, जो ground work करते हैं, and then you have seniors on top who takes care of all those things. ठीक है. So that's how if I talk about a HR generalist profile, that's how it works. Okay.
So guys, let's start today with the course. Okay, let's start with beginning the topic with a very important and basic term, that is human resources. Okay. Okay. So let's start by understanding कि human resources होता क्या है. हम human resources की इतनी बात करते हैं. What exactly is human resources? Can any one of you all tell me जो already is into human resources, or anyone else also would want to give a try कि exactly human resources होते क्या हैं? मानव संसाधन। मानव संसाधन, that's right. मानव संसाधन जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली काम कर रहे हैं, राइट? यस, That's right. तो as he rightly said, अगर मैं human resources की बात करूं, in every organization, okay, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए हमको रिसोर्सेस की जरूरत होती है. कोई भी पर्सन हो जिसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ऑल दैट पर्सन नीड्स इज रिसोर्सेस, राइट? रिसोर्सेस आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. सो अगर मैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं जहां बेसिकली एक ओनर है जिसको बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, सो वो ओनर को बेसिकली क्या लगेगा? ही विल नीड पैसा लगेगा, कैपिटल, ओके, उसको जगह लगेगी जहां वो काम कर सकता है, रॉ मटेरियल्स लगेंगे, ठीक है, ही विल नीड टू नो अ पर्टिकुलर मेथड की कोई प्रोडक्ट और सर्विस बनाया कैसे जाए, ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स आर समथिंग दैट ही विल नीड, ऑलराइट, अगर उसको बिजनेस स्टार्ट करना है तो. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये सब चीजों के साथ साथ जो सबसे जरूरी चीज है वो है उसको लोग लगेंगे, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेस, या जैसे इन्होंने कहा मानव संसाधन. तो वो ह्यूमन रिसोर्सेस जो है वो बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में. बिकॉज अगर हम और कोई भी रिसोर्सेस देखें, जैसे कि पैसा बहुत है, जगह बहुत बड़ी है, मटेरियल बहुत है, बट और उसको मेथड्स भी सब पता है, बट ह्यूमन रिसोर्सेस एट द एंड वही लिविंग रिसोर्सेज है, ठीक है. बाकी सब तो जीवित नहीं है, इसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो जीवित है, राइट? तो अगर ये सारी चीजें मैं एक जगह पे रख दूं, ये अपने आप तो कुछ बना नहीं सकती, अपने आप तो प्रोडक्ट या सर्विस बना के बेच नहीं सकती मार्केट में, राइट? सो इट्स लाइक वी रिक्वायर समथिंग दैट इज लिविंग, ऑलराइट, एंड ये लिविंग चीज जो होती है वो ह्यूमन रिसोर्सेज होती है, ठीक है. सो जब ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, तो years बैक जब ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था ह्यूमन रिसोर्सेस का, तब जो भी ओनर्स होते थे उन सब ओनर्स को बेसिकली ये लगता था कि हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ओके, दे आर जस्ट लाइक एनी अदर रिसोर्सेज, ओके. हमारे सब ओनर्स को लगता था कि ह्यूमन रिसोर्सेज तो बाकी रिसोर्सेज जैसे ही हैं, पैसा है, मटेरियल है, जगह है, ये सारी चीजें जैसी हैं वैसे ही तो हमारे ह्यूमंस भी हैं. उसमें क्या अलग है, वो कैसे ज्यादा सुपीरियर है या क्या बेटर है उनमें, ठीक है. सो ह्यूमंस को कभी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, ठीक है. सो जो भी एम्प्लॉयज हमारे लिए काम करते हैं, जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, दे वर नेवर गिवन दैट मच इंपॉर्टेंस, क्योंकि ऐसा लगता था कि ये तो चलो सब जैसे ही है. अगर पैसा बहुत है या हमारे पास मटेरियल बहुत है या जगह बहुत है, ये तो जरूरी है, और लोग भी जरूरी है, तो ठीक है, अगर लोग आए ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो अच्छी बात है. अगर वो नहीं भी टिकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हम दूसरे को हायर कर लेंगे. सो इट वाज नेवर गिवन दैट मच इंपॉर्टेंस एज सच, ठीक है. कभी उसको बहुत जरूरी नहीं माना गया था बाकी सब रिसोर्सेस की तरफ, उसको बस ट्रीट किया गया था कि ठीक है, आज है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी है तो कोई हम दूसरे हायर कर लेंगे, ठीक है. दैट इज द काइंड ऑफ मेंटालिटी दैट वाज देयर व्हेन ह्यूमन रिसोर्सेस कॉन्सेप्ट स्टार्टेड. बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास भी 5 M's थे, जैसे कि लोग थे, मनी था, मशीन्स था, मटेरियल था, मेथड था, इन सबको एक ही लेवल पे ट्रीटमेंट मिल रही थी, ठीक है. कभी ऑर्गेनाइजेशंस को ये रियलाइज नहीं हुआ कि इट्स लाइक बाकी सब तो बहुत जरूरी है. मैं ये नहीं बोल रही हूँ पैसे के बिना, जगह के बिना या मटेरियल के बिना काम चलेगा, ठीक है, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमको लोगों के बिना काम नहीं चलेगा. आई मीन ये सब सामान तो है, बट अगर इसमें से एक भी सामान मिसिंग भी हो गया थोड़ा तो भी चल जाएगा, बट अगर लोग ही नहीं है तो कैसे होगा. एंड लोग भी ऐसे कोई भी लोग नहीं चलेंगे, वो लोग जिनके पास नॉलेज हो, उनके पास राइट एटीट्यूड हो काम करने का, उनका माइंडसेट बराबर हो, ठीक है, उतने स्किल्स होने चाहिए. आई मीन एक आदमी को आप खड़ा कर दो जिसको कुछ नहीं आता है, ठीक है,
वो खड़ा रहेगा वहां पे, वो मटेरियल यूज ही नहीं कर पाएगा, प्रोडक्ट बना ही नहीं पाएगा। एट द सेम टाइम आप एक ऐसे आदमी को लेके आओ जिसके पास इतना नॉलेज है, आप देखोगे वही मटेरियल से वो एक अलग ही कुछ बना देगा, ऐसा कुछ बना देगा जो सब बोलेंगे वाह ये तो अमेजिंग है। सो कोई भी आदमी भी ऐसा नहीं है कि हमको ह्यूमन बींग्स बोल दिया तो मतलब कोई भी आदमी को लाके खड़ा कर दो। इम्पोर्टेंट है वी गेट एम्प्लॉयज और वी गेट मेन जो टैलेंटेड हो, जो स्किल्ड हो, जिनके पास राइट नॉलेज हो, विच आर रिक्वायर्ड, राइट? सो इट्स लाइक वी नीड money, machines, material and method, but most important we need people who have the right skills and knowledge for that particular job. वो बहुत जरूरी है। सो वो राइट लोगों को लेके आना, ऑर्गेनाइजेशंस को रियलाइज हुआ कि बहुत ज्यादा जरूरी काम है। बिकॉज अगर आप राइट लोगों को लेके आओ तो उनके पास वो पावर होती है कि वो अपने माइंड से, अपने स्किल से सब रिसोर्सेस को बराबर से मैन्युपुलेट कर सकते हैं और ऐसे यूज कर सकते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट बना लेंगे कि बाकी सब मेरे कॉम्पिटिटर्स पीछे रह जाएंगे, राइट? सो बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ एवरी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एक ह्यूमन माइंड ही होता है, एक ह्यूमन माइंड एंड एफर्ट ही होता है। आप रियलाइज करोगे कि ओवर द इयर्स जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को ये रियलाइज होने लगा कि बाकी रिसोर्सेस तो यार मेरा कॉम्पिटिटर भी सब मेरे जैसा ही लेके आ सकता है, मेरे पास पैसा जो है वो 50 करोड़ है तो मेरे कॉम्पिटिटर के पास भी हो सकता है, मेरे पास जो यहाँ से मटेरियल में लेके आया वो भी लेके आ सकता है, मेरे पास जो भी वेयर हाउस का साइज है या मेथड्स मुझे पता है वो उसको भी पता हो सकते हैं। एक ही चीज है जो हम दोनों में एकदम अलग हो सकती है और कोई भी मेरे जैसा नहीं लेके आ सकता, वो मेरे एम्प्लॉयज होंगे, वो मेरे मैन पावर रिसोर्सेज होंगे। क्योंकि मेरा जो मैन पावर होगा और जो मेरे जो रिसोर्सेज होंगे या ह्यूमन बींग्स होंगे, कोई भी इंसान एक दूसरे की जैसा कभी नहीं हो सकता। अगर मैं एक ए पर्सन है जो बहुत अलग है, बी तो उससे और भी अलग होगा। नो टू पीपल आर द सेम, ठीक है? सिमिलर भी नहीं बोल सकते, सेम भी नहीं, मतलब कोई भी सिमिलर भी नहीं हो सकता एक दूसरे से, ठीक है? जो खुद के भाई बहन होते हैं वो इतने अलग होते हैं एक दूसरे से। सो पीपल आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो दिस इज व्हाट ऑर्गेनाइजेशन ओवर द इयर्स रियलाइज किया कि मैं बाकी तो रिसोर्सेस सब एक दूसरे हम सेम रेप्लिकेट कर सकते हैं, बट एक ही चीज है जो बहुत यूनिक बनाएगी हमको दूसरों से, वो मेरे एम्प्लॉयज होंगे। अगर मेरे एम्प्लॉयज बहुत टैलेंटेड होंगे, बहुत स्किल्ड होंगे, बहुत नॉलेजेबल होंगे, ऑटोमेटिकली मैं देखूंगा कि मेरा जो प्रोडक्ट्स है, मेरे जो सर्विसेज हैं, उसकी क्वालिटी, वो जो जो मैं बनाऊंगा प्रोडक्ट्स, वो बहुत ज्यादा यूनिक होंगे एज कंपेयर टू दी others. So they realize that human beings are so important, as compared to the other raw materials. ठीक है? No product or service can be produced without the help of human being. ह्यूमन बीइंग जो है वो फंडामेंटल रिसोर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। वो नहीं है तो कोई प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिजायर इज टू हैव अ स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट रिसोर्स। हर ऑर्गेनाइजेशन की डिजायर है कि उनको ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो, ठीक है? जिसके पास बहुत ज्यादा स्किल्स हो एंड उसको सब पता हो कि कैसे कोई प्रोडक्ट बनाना है या कैसे कोई सर्विस बनाना है। बट दैट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल गाइज। हमेशा थोड़ी पॉसिबल होता है कि मुझे ऐसा कोई एम्प्लॉय मिले जो 100% एकदम ज्यादा स्मार्ट हो, 100% उसमें स्किल्स हो एंड वो एकदम परफेक्शनिस्ट हो। दैट्स नॉट पॉसिबल, ऑलवेज वो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है? सी देयर आर, एक सिचुएशन बताती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया ह्यूमन बीइंग्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? सो डेफिनेटली अगर सपोज दो ऑर्गेनाइजेशंस है ए एंड बी, उनके पास सब रिसोर्सेज जो है वो एकदम सेम है, ठीक है? अगर मैं मटेरियल्स की बात करूं, अगर मैं पैसे की बात करूं, जगह की बात करूं, मेथड्स के नॉलेज की बात करूं, उनके पास सब कुछ सेम है। तो एक ही चीज है जो दोनों में बहुत ज्यादा अलग होगी, वो होंगे उनके एम्प्लॉयज। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन ए को ऐसे एम्प्लॉयज मिले जो बहुत टैलेंटेड है, बहुत नॉलेजेबल है, उनके पास बहुत स्किल्स है, राइट? हाउएवर ऑर्गेनाइजेशन बी को ऐसे एम्प्लॉयज मिले जो उतने नॉलेजेबल नहीं है, उतने टैलेंटेड नहीं है एंड उतने भी स्किल्ड नहीं है, ठीक है? डेफिनेटली अगर मैं शॉर्ट टर्म में पहुंचूं, ठीक है, इन द शॉर्ट टर्म इफ आई आस्क यू गाइस, डेफिनेटली आप बोलोगे कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा सक्सेसफुल होगा, तो डेफिनेटली वी विल से दैट ऑर्गेनाइजेशन ए जो है वो बहुत सक्सेसफुल होगा। व्हाई? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन ए जो है उसके पास इतना टैलेंटेड टीम है, ओके? However, guys, you need to understand in the long run that is not always true, ठीक है? लॉन्ग रन में दो चीजें हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि जो बी है
वो अपने एम्प्लॉयज को इतनी ट्रेनिंग और इतनी ग्रूमिंग दे दे कि वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हो जाए, ए जैसे एम्प्लॉयज जैसे। दूसरी चीज ये हो सकती है कि ए जो है एज अ एम्प्लॉयर उतना अच्छा ही नहीं है, उसको आता ही नहीं है लोगों को संभाल के रखना। उसके पास बहुत अच्छे लोग हैं बट ना वो लोगों के लिए कुछ करता है, ना अच्छी पॉलिसीज बनाता है, इतना स्ट्रिक्ट है, इतने उसने इन्वायरमेंट इतना गंदा किया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का कि आप देखोगे कि लोग रुकते ही नहीं है वहां पे, लोग अपने आप छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। हाउएवर इन द लॉन्ग रन आप देखोगे बी इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है, इन्वायरमेंट इतना अच्छा है, रियली टेक्स केयर ऑफ हिज एम्प्लॉयज, ठीक है, ट्रेनिंग देते हैं, डेवलपमेंट देते हैं, इतना ग्रूम करते हैं, और आप देखोगे इन द लॉन्ग रन जो भी ए के भी एम्प्लॉयज है वो भी बी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। सो इट्स लाइक गाइस, अच्छे एम्प्लॉयज हायर करना कोई गारंटी नहीं देता है कि इन द लॉन्ग रन आपकी कंपनी सक्सेसफुल होगी, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स कि लॉन्ग रन में आप एज अ कंपनी कैसे हो, आप कल्चर कैसे बना रहे हो, एम्प्लॉयज का ध्यान कितना दे रहे हो, आप एम्प्लॉयज को कंफर्टेबल कितना रख रहे हो। सो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। ओके, अंडरस्टैंडिंग कि ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ। अगर मैं ह्यूमन रिसोर्सेस की बात करूं तो ये ह्यूमन रिसोर्सेस स्टार्ट कहाँ से हुआ कॉन्सेप्ट, राइट। सो हम बोल सकते हैं कि बहुत साल पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जब स्टार्ट हुआ, इयर्स बैक, ओके, बहुत साल पहले आप बोल सकते हो कि यू नो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट केम इन, ठीक है, जहां पे इंडस्ट्रीज भी न्यू थी, मतलब ओनर्स ने बस चालू ही किया था इंडस्ट्रीज बनाना वो टाइम पे, ठीक है। एट दैट टाइम यू विल सी तब क्या हुआ था एग्जैक्टली जब दिस कॉन्सेप्ट जस्ट स्टार्टेड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओनर्स ने क्या किया, एक यू नो प्लेस ले ली, वेयर हाउस ले लिया, पैसे थोड़े मशीन्स रख दिए वहां पे, ठीक है, उन्होंने थोड़े लोगों को हायर कर लिया, ऑलराइट। अब ये लोगों को जो उन्होंने हायर कर लिया, उन्होंने बेसिकली लोगों को हायर किया, उनको बोला काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। अभी ओनर था एंड ये लोग थे। ओनर जो है डेफिनेटली ट्राई करता था बहुत बार कि लोगों से जाके बातें करें, ठीक है, समझे कि व्हाट प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, कुछ इश्यूज तो नहीं है उनको, ठीक है। एट द सेम टाइम वो ट्राई करता था कि जितना हो सके लोगों से वो इन्वॉल्व रहे बातें वगैरह करने में, ठीक है। बट ओवर द इयर्स आप देखोगे जैसे ही ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का यू नो कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन हो गया, प्रेशर बढ़ने लग गया, सो ओनर डेफिनेटली उसको दूसरे फंक्शंस पे बहुत ज्यादा फोकस करना लगा, क्योंकि उसको बिजनेस बढ़ाना था, ही वांटेड टू यू नो रियली एक्सपैंड द बिजनेस, उसको जेन्युइनली ऐसा था कि ही वांटेड टू यू नो अपने बिजनेस पे हर चीज वो ज्यादा बेस्ट करना चाहता था, अपने कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा बेटर बनना चाहता था। सो डेफिनेटली आप देखोगे कि ओनर के पास उतना टाइम अवेलेबल नहीं था, बिकॉज उसको कैपिटल अरेंज करना, रॉ मटेरियल्स अरेंज करना, दूसरी चीजों पे उसका फोकस जो है ये यू नो डेली ऑपरेशनल काम पे उसका फोकस बढ़ने लग गया, ठीक है। दैट इज व्हेन वी रियलाइज दैट जो ये वर्कर्स थे जिनको अपॉइंट कर लिया, ओके, ऑन डे टू डे बेसिस देयर वाज सो मच, ठीक है, बहुत चीजें थी, उनको ऐसे लगता था कि वो ओनर से डिस्कस करे, ठीक है, बहुत ऑपरेशनल इश्यूज थे कभी कभी, और बहुत पर्सनल इश्यूज भी थे जो उनको ऐसे लगता था दे वांटेड समवन दे कुड डिस्कस इट विद, ठीक है। बट डेफिनेटली बिकॉज द ओनर वाज नॉट ऑलवेज अवेलेबल टू टॉक टू, ठीक है, प्लस ओनर हमेशा शाम खुद से जाके बात नहीं कर पाता था, एंड इतने सारे वर्कर्स भी थे वो टाइम पे, वो टाइम पे इतने सारे, मतलब 10-15 से भी अगर उन्होंने स्टार्ट किया था, ईच एंड एवरीवन सबसे बात करना वाज नॉट पॉसिबल फॉर द ओनर्स, ओके। दैट इज व्हेन दे रियलाइज दैट दे नीड अ पर्सन, ठीक है, जो बेसिकली एक मीडिएटर बने, ठीक है, एक मीडिएटर जैसा काम करे कि ओनर को जब इतना ज्यादा यू नो वर्कर्स को इतने इश्यूज होते हैं, वो कोई तो पर्सन हो जो सुन सके ये सब बातें एंड ओनर या मैनेजमेंट तक बताए ये बातें आके। एट द सेम टाइम ओनर को कितनी सारी चीजें कभी कभी वर्कर्स को बतानी होती थी, बट कोई वो डायरेक्टली जाके एक एक से बात करना वाज नॉट पॉसिबल फॉर हिम। तो ऐसा कोई पर्सन जो है ओनर की या मैनेजमेंट की बातें सुने एंड वो भी वर्कर्स तक पहुंचाए। सो समवन वी नीडेड जो एक मीडिएटर का काम करे, ठीक है। दैट इज व्हेन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर वेलफेयर ऑफिसर स्टार्टेड, ठीक है। सो ये लेबर वेलफेयर ऑफिसर का कॉन्सेप्ट आप देखोगे स्टार्ट हो गया वो टाइम पे, ठीक है। दैट वाज बेसिकली अ पर्सन जो मीडिएटर बन गया ओनर और वर्कर्स के बीच में। उनका मेन काम वो टाइम पे यही था जब ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, दैट दे नीड टू बी अ मीडिएटर, एक लिंक हो जाएगा, बिकॉज लिंक नहीं होता है ना गाइस, तो आप देखोगे
मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि पता नहीं वर्कर्स बराबर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि नहीं काम। वर्कर्स भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड वर्कर्स भी कंफ्यूज रहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं यार मजा नहीं आ रहा है, कोई बात सुनने वाला ही नहीं है, चीजें बराबर मूव ऑन नहीं हो रही है, ठीक है। सो दे ऑल्सो फील दैट हमको छोड़ के चले जाना चाहिए। सो इट्स लाइक अ कॉमन फीलिंग हो जाती है डिससेटिस्फैक्शन की दोनों पार्टीज के लिए। हाउएवर कोई एक पर्सन मिल जाए जो सुने कि क्या इश्यूज है एंड ट्राई करे मैनेजमेंट से बात करके उसको सॉल्व करने के लिए, तो चीजें बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है। दैट इज व्हाट अ लेबर वेलफेयर ऑफिसर वाज डूइंग। वो लिंक था एंड वो दोनों पार्टीज के बीच में एक मीडिएटर था, ठीक है। अभी ओवर द इयर्स क्या होने लग गया, जैसे इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट बढ़ गया, फैक्ट्रीज का काम बढ़ गया, ठीक है। एट दैट टाइम यू विल सी क्या हो गया, बिकॉज ओनरशिप का काम बढ़ गया, फैक्ट्रीज का काम बढ़ गया एंड ऑल दीज थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग, ओके। तो बेसिकली एट दैट टाइम यू विल सी दैट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इजी हो गया और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ऑलराइट। एंड क्या हो गया वो कॉन्सेप्ट में, बेसिकली इट्स लाइक उनको रियलाइज हो गया वो ओनर्स को कि अब बस एक मीडिएटर का काम नहीं कर सकता है ये पर्सन, इसको उससे थोड़ा तो ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। वी नीड समवन बेसिकली जो हमारे लिए और भी थोड़ा काम करे, जो एक मीडिएटर तो काम करे डेफिनेटली, एज अ मीडिएटर तो वो फंक्शन करे, वो तो उसका काम हमेशा रहेगा। बट उसके अलावा क्योंकि इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा था, काम ऑपरेशनल्स इतने ज्यादा हो रहे थे अभी, दे नीडेड समवन जो राइट पर्सन हमारे लिए अपॉइंट करके लेकर आए, ठीक है। मतलब मुझे इतने स्टाफ की जरूरत पड़ती है, अब मैं तो नहीं ढूंढने जा सकता इतने स्टाफ को, राइट। सो आई नीड समवन जिसको पता हो कि कौन से काम के लिए कहाँ से कोई बंदा वो लेकर आ सके, ठीक है। एंड वो पर्सन को प्लेस कर सके ऑर्गेनाइजेशन में लाके। सो उसको ढूंढना, उसको सिलेक्ट करना और उसको प्लेस करना, ये काम भी कोई कर सके। और मीडिएटर तो डेफिनेटली वो पर्सन रहेगा, ठीक है। सो अभी हमको ऐसा कोई चाहिए था जो थोड़ा अपग्रेड हो गया हो, जो थोड़ा बेटर काम करे, ठीक है। सो वी नीडेड समवन हु वाज अपग्रेडेड फ्रॉम अ लेबर वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है, टू अ पर्सोनल ऑफिसर। सो लेबर वेलफेयर ऑफिसर से अपग्रेड करके वो पर्सन कौन बन जाएगा, पर्सोनल ऑफिसर, ठीक है, अपग्रेडेड टू अ पर्सोनल ऑफिसर, ऑलराइट। नाउ दिस पर्सोनल ऑफिसर जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है। सो उसके क्या क्या फंक्शंस थे, मीडिएटर और लिंक बनना मैनेजमेंट और वर्कर्स का तो था ही। एट द सेम टाइम तीन और जॉब से रिक्रूटमेंट, दैट इज लोगों को ढूंढना उसका काम था, सिलेक्ट करना, इतने सारे लोग उन्होंने ढूंढ लिया, अब उसमें से राइट पर्सन कौन सा रहेगा, कौन एक राइट जॉब के लिए, वो सिलेक्ट करना, ठीक है। एंड वो लोगों को प्लेस करना, ठीक है, उनको बुला लेना और उनको परफेक्टली काम पे प्लेस करना, ठीक है। सो दिस वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ द पर्सोनल ऑफिसर, ऑलराइट। सो बहुत साल तक आप देखोगे गाइस कि पर्सोनल ऑफिसर का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन रहा। और ये पर्सोनल ऑफिसर जो है वो बहुत साल तक यही काम करते रहे, अनटिल अनलेस ग्लोबलाइजेशन आया। थोड़े साल बाद ग्लोबलाइजेशन हो गया। अब ग्लोबलाइजेशन में क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन में हमको पर्सोनल ऑफिसर से तो हमारा काम नहीं चलने वाला था, बिकॉज अभी तक क्या हो रहा था, एक ही इंडस्ट्री थी, ठीक है। वो इंडस्ट्री जो जगह पे थी, वर्कर्स भी वहीं बैठे थे, पर्सोनल ऑफिसर भी वहीं बैठता था। तो क्या होता था, कम्युनिकेशन करना एंड मैनेज करना बहुत इजी हो गया था। प्लस हमको उतने अपग्रेडेड वर्कर्स नहीं चाहिए थे काम पे, सब जो भी काम करते थे वर्कर्स आके बस अपना 9 to 5 काम करके चले जाते थे। हमको बहुत ज्यादा वर्कर्स को इम्प्रूव करना या वर्कर्स पे पैसा इन्वेस्ट करना और उनको ज्यादा अपग्रेड करना, ये फोकस कभी नहीं था। अनटिल अनलेस ग्लोबलाइजेशन हुआ, जब इंडस्ट्री सिर्फ अपने स्टेट में या अपने सिटी या कंट्री में नहीं रही, वो कंट्री के बाहर चली गई, बाहर की जो भी कंट्रीज से जो भी इंडस्ट्रीज या बिजनेसेस है वो इंडिया में आई, ठीक है। सो मतलब इतना ज्यादा मार्केट वास्ट हो गया कि अब जो है वो रिक्वायरमेंट इतनी लिमिटेड नहीं थी। अब ये था कि जो भी वर्कर्स होंगे उनको ट्रेनिंग देना है, उनको डेवलप करना है, ठीक है। उनको ऐसा नहीं है कि बस हायर कर लिया और बस तुम काम करते जाओ, वो रिक्वायरमेंट अब नहीं रही थी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वर्कर्स को एकदम ज्यादा
अच्छा रखना, ठीक है, वर्कर्स को जो है वो हैप्पी रखना, वर्कर्स को रिटेन करना ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, वर्कर्स का ध्यान देना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा प्रायोरिटी हो गई अभी। तो ये पर्सोनल ऑफिसर ये सब नहीं कर पाया, ठीक है। अब हमको ऐसा कोई चाहिए था जो बहुत ज्यादा अपग्रेडेड हो पर्सोनल ऑफिसर से, एंड दैट इज व्हेन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एचआर मैनेजर केम इन, जो अभी भी हमारा करंट कॉन्सेप्ट है। सो गाइज आप देखोगे करंटली भी अगर एक एचआर का काम है, एचआर का काम आजकल सिर्फ ऑपरेशनल फंक्शंस में लिमिटेड नहीं है गाइस। वी हैव गॉट इनटू समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक फंक्शंस ऑफ एचआर, ठीक है। एचआर जो है आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक फंक्शंस में चला गया है। कैन एनी वन ऑफ यू ऑल टेल मी स्ट्रैटेजिक फंक्शंस ऑफ एचआर मतलब क्या होता है? एनी आइडिया गाइस व्हाट इज स्ट्रैटेजिक फंक्शंस ऑफ एचआर? मैम जो ओनर की बातों को सुन सके, एंड मेरे हिसाब से तो जो वर्कर्स हैं उनको सुन सके, उनकी बातों को ओनर तक पहुंचा सके और ओनर के आइडियाज को वर्कर्स तक पहुंचा सके उनकी बातों को। ओके, ठीक मे है, बी, ऑलराइट, मे बी। ओके। हम्म। What else, guys? Anyone else? What do you guys feel? No idea? किसी को आइडिया नहीं इस चीज के बारे में? No, ma'am. ठीक है। सो इफ आई टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजिक फंक्शंस गाइस, ठीक है, सी जैसे आपने बोला ओनर की बातों को और वर्कर्स की बातों को सुन सके, गाइस वो चीज तो मैंने जैसे आपको बताया लेबर वेलफेयर ऑफिसर जब कॉन्सेप्ट चालू हुआ था इतने साल पहले, इयर्स बैक, तभी से उसका फंक्शन तो एचआर का वही रहा है गाइस, कि वो ओनर की बातों को सुन सके, वर्कर्स की बातों को सुन सके, बीइंग अ मीडिएटर, बीइंग अ लिंक, वो फंक्शन तो एचआर का और फॉर इयर्स है, जब से वो लेबर वेलफेयर ऑफिसर का कॉन्सेप्ट था तब से था। बट अब जब एचआर के कॉन्सेप्ट में हम स्ट्रैटेजिक फंक्शंस की बात करें, वो बहुत ज्यादा अपडेटेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अपडेटेड कॉन्सेप्ट इन द सेंस आप ये बोल सकते हो कि पहले जमाने में क्या होता था, मैं आपको बताती हूँ, इवन बहुत सालों पहले तक भी ये कॉन्सेप्ट था कि एवरीडे एम्प्लॉयज आएंगे 9 to 5 अपना काम करेंगे जाएंगे। अभी भी बहुत कंपनीज वही फॉलो करती है कॉन्सेप्ट, ठीक है। बट ये कॉन्सेप्ट समझना कि एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है। हमको पता है हर ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन होता है, मिशन होता है, एक गोल होता है जिसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनी है, राइट। तो बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, ठीक है। अब ये जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, हर इंप्लॉय को पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। थोड़े साल पहले तक तो डेफिनेटली नहीं पता था, इंप्लॉयज को पता ही नहीं होता था कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है या ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है। उनको पता था कि उनका ये काम है, वो आते थे डेली अपना काम करके चले जाते थे, राइट। बट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जैक्टली गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का विजन और मिशन क्या है, ठीक है, और मेरा काम कैसे कंट्रीब्यूट करने वाला है ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल को या विजन और मिशन को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। इसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक फंक्शन ऑफ एचआर। ये जो है ये एक ही लाइन में लेकर आना, ठीक है, कि ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, तो ये गोल के हिसाब से तुम्हारा काम ये है, अगर तुम ऐसा काम कंप्लीट करोगे तो तुम ऑर्गेनाइजेशन के ये गोल को फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब हर एम्प्लॉय का काम जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल से अटैच करना, ठीक है, उनको एक ही लाइन में लेके आना, उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक फंक्शन ऑफ एचआर, ठीक है। दैट इज बेसिकली हम ऐसी स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, हम ऐसे काइंड ऑफ प्लान्स बना रहे हैं जहां पे बेसिकली हम वी आर सीइंग टू इट कि हर एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन का गोल फुलफिल कर पाए, ठीक है। पहले टाइम में क्या होता था, डेफिनेटली मैं ये नहीं बोल रही हूँ सी एम्प्लॉयज को अवेयरनेस नहीं थी ये चीजों की, ठीक है, पहले भी काम सब ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए ही करते थे, बट मुझे कभी पता ही नहीं था कि मैं अकाउंट्स में काम कर रही हूँ तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए, ठीक है, या कोई भी डिपार्टमेंट के लोगों को कभी अवेयरनेस नहीं थी। बट क्योंकि अभी ऐसे पॉलिसीज आ गए हैं, ऐसे काइंड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम्स आ गए हैं, ठीक है, कि हम उसके थ्रू इजिली एम्प्लॉयज को उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड उनके ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको बता पाते हैं, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली नोन एज अ स्ट्रैटेजिक फंक्शन ऑफ एचआर, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, ओके। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन पर्सोनल मैनेजमेंट एंड एचआर मैनेजमेंट। सो मैंने आप लोगों को ये बताया गाइस कि थोड़े साल पहले तक हम ऑर्गेनाइजेशंस में पर्सोनल मैनेजमेंट होता था, जो एचआरस नहीं थे, वहां पे पर्सोनल मैनेजर्स थे, और करंटली जो होता है एचआरस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। बट आई टेल यू वन थिंग गाइस, मैं अभी भी आपको एक बात बताती हूँ, इट्स लाइक जस्ट माई एक्सपीरियंस।
अगर हम अभी डिफरेंस क्या है दोनों का ये समझेंगे, आप मानो ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं इवन इन टुडेज टाइम जो पर्सोनल मैनेजमेंट ही फॉलो करती है, ठीक है। इट्स लाइक बहुत ऑर्गेनाइजेशंस को अवेयरनेस हो गई है। सो आप बोल सकते हो 50 to 60% ऑर्गेनाइजेशंस अब ऐसी हो गई है जो एचआर मैनेजमेंट के टूवर्ड्स जा चुकी हैं, ठीक है। हाउएवर देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस इवन टुडे जो पर्सोनल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट फॉलो करती हैं, ठीक है। सो मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम डिफरेंस सुनेंगे तो आप बोलोगे कि मैम आप तो बोल रहे थे पर्सोनल मैनेजर जब था थोड़े साल पहले, मतलब काफी साल पहले ग्लोबलाइजेशन से पहले, तभी पर्सोनल मैनेजमेंट होता था। तो आपको ऐसे लगेगा कि अभी तो करंट ऑर्गेनाइजेशन में तो सब एचआर मैनेजमेंट है। ऐसा नहीं है गाइस, अभी भी बहुत ऑर्गेनाइजेशंस है जो वही कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट इनटू दिस न्यू सिस्टम ऑफ एचआर मैनेजमेंट। उनको ऐसे लगता है पर्सोनल मैनेजमेंट जो है वो बेस्ट सेटअप है उनके लिए। एंड एम्प्लॉयज भी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे होंगे जो आप देखोगे कि वो बहुत ज्यादा एडजस्ट हो गया वो कल्चर से, ठीक है। पर्सोनल मैनेजमेंट कल्चर कब था गाइस? जब हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, ठीक है, आप देखोगे तभी मोस्टली पर्सोनल मैनेजमेंट का कल्चर था, ठीक है। जहां पे आप देखोगे कि जो भी ह्यूमन बीइंग्स है उसको मशीन्स जैसे ट्रीट किया जाता था। एवरीवन शुड कम 9 to 5 डू देयर जॉब एंड गो, ठीक है। बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल एंड डोमिनेटिंग एनवायरनमेंट होता था ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। जहां पे आप अपना ओपिनियंस, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कभी भी आपका ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू पूछा नहीं जाएगा। आप आओ अपना काम करो जाओ, ठीक है। मतलब आपके ओपिनियंस और पॉइंट ऑफ व्यू उतना वेलकम नहीं था कभी भी, ठीक है। एंड प्लस जो भी सैलरी होती थी एम्प्लॉयज की वो टाइम पे आप देखोगे कि स्पेशली गवर्नमेंट प्लेसेस में, तो आई डोंट नो करंटली वैसा सेटअप है कि नहीं, आई एम वेरी श्योर अब नहीं रहा है, बट बहुत टाइम साल पहले एंड इवन प्राइवेट सेक्टर्स में आप देखोगे कि जो एम्प्लॉय ने पहले ज्वाइन किया उसकी सैलरी ज्यादा होती थी। जो बाद में आया भले उसके पास ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा स्किल्स है, ठीक है, पर उसकी सैलरी कम होगी। सो जो ये होता था ना कि सीनियोरिटी बेसिस पे सैलरी डिसाइड करना, वो बहुत कॉमन चीज थी ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। अभी वो कॉन्सेप्ट अब बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशंस में देखोगे, अदरवाइज वो चीज नहीं रही अब परफॉर्मेंस बेस्ड जो है वो बहुत ज्यादा फोकस आ गया है कि परफॉर्मेंस बेस्ड जो है वो सैलरी डिसाइड होनी चाहिए, ठीक है। बट पहला वैसा नहीं था। आपके पास अगर काम ज्यादा है और आप पहले आए हो ऑर्गेनाइजेशन में तो आपकी सैलरी ज्यादा है। आपके पास अगर काम कम है और प्लस आप नए हो ऑर्गेनाइजेशन में, भले आपके पास स्किल्स और एजुकेशन और वो सब बहुत ज्यादा है, फिर भी आपकी सैलरी कम रहेगी, ठीक है। सो दैट वाज द काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जो सैलरी के बेसिस पे फॉलो होता था, ठीक है। प्लस जो भी पॉलिसीज बनती थी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे कि वो सारी पॉलिसीज जो है बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बनती थी। मतलब कभी एम्प्लॉयज को पूछते ही नहीं थे कि आपको ये पॉलिसी अच्छी लगी क्या, आपको कन्वीनियंट है क्या ये पॉलिसी। सो वो कभी सोचा भी नहीं जाता था, ना पूछते थे, ना ऑर्गेनाइजेशन ये चीजें कभी सोचती थी यार कि नहीं ये पॉलिसी बनाने से मेरे एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम होगी। कभी नहीं सोचते थे। उनको ऐसे लगता था कि नहीं हमारे लिए कन्वीनियंट है तो एम्प्लॉय को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो जैसे मैंने बताया बहुत डोमिनेटिंग एंड रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट था, ठीक है, पर्सोनल मैनेजमेंट में। एंड था नहीं बोल सकती हूँ, एज आई टोल्ड यू 30 to 40% ऑर्गेनाइजेशन इवन टुडे गाइज ऐसा ही फॉलो करते हैं। आज भी आप देखोगे कि पॉलिसीज इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होती है वहां पे। एंड और एम्प्लॉयज का बिल्कुल भी वहां पे ओपन डोर पॉलिसी का कल्चर है ही नहीं, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन बोलती है वैसा करना पड़ेगा। सो रिस्ट्रिक्टिव और डोमिनेटिंग एनवायरनमेंट इज समथिंग जो आज भी वहां पे है, ठीक है। हाउएवर अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस देखोगे जो समझ गई हैं आज, ठीक है, कि एम्प्लॉय से इंपॉर्टेंट तो कोई रिसोर्स नहीं है। आई मीन अगर मेरे एम्प्लॉयज हैप्पी नहीं है, मेरे अच्छे एम्प्लॉयज को मैं ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन नहीं कर सकती हूँ या खुश नहीं रख सकती हूँ, देन डेफिनेटली कल जाके मेरा ऑर्गेनाइजेशन उतना सक्सेसफुल बन ही नहीं सकता एज कंपेयर टू दी अदर ऑर्गेनाइजेशंस। अगर वो माइंडसेट आप देखोगे जो ऑलरेडी काफी ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे मैंने बोला 50 to 60% ऑर्गेनाइजेशंस में आ गए हैं, यू विल सी ऑल टुगेदर इन्वायरमेंट ही चेंज हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। लोगों से उनके ओपिनियंस पूछे जाते हैं, ओपन डोर पॉलिसी रखी जाती है, डिस्कशंस होती है वहां पे, ठीक है। वहां पे कोई डोमिनेटिंग कल्चर नहीं होता है कि जो मैंने बोला वो करना है, वैसा टाइप का कल्चर इज नॉट देयर, ओके। इट्स लाइक डिस्कशन वाला कल्चर है जो वो वहां पे होता है, ठीक है। सब लेवल्स पे एम्प्लॉयज को इक्वल ट्रीटमेंट दी जाती है। ऐसा नहीं है
कि सीनियर लेवल है तो बस उनको ही सब मिलेगा और जो जूनियर लेवल है उनको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, उनको कुछ मिलता ही नहीं है। वो चीज होती ही नहीं है वो ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। वो ये सोचते हैं कि अभी पहले टाइम में कैसा होता था, उनको सिर्फ ऐसा लगता था कि आप 9 to 5 आओ, अपना काम करो, जाओ। आपके एज एन एम्प्लॉय क्या पर्सनल गोल्स हैं, ठीक है, आपके क्या ड्रीम्स है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं सोचता था। आप आओ, आप हमारा काम करो और जाओ। बट अभी ऐसा कल्चर नहीं है गाइस, बिकॉज अभी एम्प्लॉयज भी बहुत अलग है, ठीक है। डेफिनेटली मैं आपको जैसे बता रही हूँ, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, वो जनरेशन अलग थी। अभी करंट जनरेशन ऐसा है कि एम्प्लॉयज जो है वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं अपने पर्सनल गोल्स पे, वो बहुत जरूरी है उनके लिए। पर्सनल गोल्स जो है वो एम्प्लॉयज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करंटली गाइस। आई मीन इमेजिन अ सिचुएशन इन टुडेज टाइम, ठीक है, जहां पे एक एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ आपके ऑर्गेनाइजेशन में, 3 साल हो गए, एक ही पोजीशन पे है, ठीक है, कोई ट्रेनिंग, कोई डेवलपमेंट कुछ नहीं मिल रहा है, कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा है, सैलरी इंक्रीज हो रही है बट बाकी कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। सो गाइज ये याद रखना, अगर आप ऐसे सेटअप में ऐसे एम्प्लॉयज को रखोगे, 4th ईयर आप देखोगे वो एम्प्लॉय जॉब चेंज कर देगा, ठीक है। सी आई एम नॉट सेइंग एम्प्लॉयज को जॉब, पहले पहले वो कल्चर नहीं था, ठीक है। आप हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को देखोगे, उन्होंने जो जॉब ज्वाइन की, टिल दे रिटायर उन्होंने वहां से वो जॉब छोड़ी नहीं, ठीक है। बट अब वो कल्चर रहा ही नहीं। हर एम्प्लॉय, 3 साल भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 6 months, 1 year, 1.5 year, 2 years, मैक्स टू मैक्स 2 साल, उसके बाद लोग रुकते नहीं है एक जगह पे, ठीक है। सी आई एम नॉट सेइंग दैट ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक ऑलवेज टू बी ब्लेम्ड, ठीक है। बहुत लोगों का नेचर ऐसा होता है कि उनको ऐसा लगता है वो स्विच करते जाएंगे तो ही उनको ग्रोथ मिलेगा। बट बहुत टाइम हम ऑर्गेनाइजेशन को भी ब्लेम करेंगे इस चीज में, बिकॉज आप अगर ग्रोथ ही नहीं दोगे अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है, एक एम्प्लॉय है जिसको आप एवरी 2 years उसने इतना अच्छा परफॉर्म करा है तो आप उसको प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। अगर ऐसा कोई एम्प्लॉय है जो आप उसको इतनी ट्रेनिंग्स दे रहे हो कि उसके स्किल्स जो है वो एकदम अपडेटेड है, जब वो मार्केट में जाता है बाहर कॉम्पिटिटर्स के पास या अपने फ्रेंड्स या कलीग्स के पास, उसके स्किल्स जो है वो सबसे अलग माने जाते हैं, बिकॉज आप लोग ने उतना ग्रूम किया, ठीक है। आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन उतना ध्यान देते हो उसके स्किल्स का, उसके प्रोडक्टिविटी का, उसकी सैलरी का, उसके प्रमोशंस का, उसकी ग्रोथ नहीं रोक रहे हो आप। तो बहुत ही कम देखोगे आप, अगर आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा कल्चर वर्क कर रहे हो, सो वेरी रेयरली यू विल सी दैट ऐसे एम्प्लॉयज कंपनी स्विच करते हैं, ठीक है। मतलब 100 में से आप मानो कि मे बी 30 to 40 करेंगे, बट 60 आप फिर भी रिटेन कर पाओगे, ठीक है। सो सी गाइज, वी कैन नॉट चेंज पीपल, बट एज अ ऑर्गेनाइजेशन आपको कल्चर ऐसा बहुत ज्यादा, स्पेशली इन टूडेज टाइम, आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली आजकल के टाइम में ऐसा हो गया है कि जो भी एम्प्लॉयज है उनके पर्सनल गोल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, बिकॉज अगर हम उनके पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान नहीं दोगे आप, तो आप देखोगे वो रुकेंगे ही नहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज उनको ऐसे लगेगा यार मैं यहाँ रुक के क्या करूं, मैं बाहर मार्केट में कभी निकलूंगा इंटरव्यू के लिए तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा या मुझे कुछ पता ही नहीं होगा यार, तो आई कैन नॉट स्टे हियर एंड वेस्ट माई करियर, राइट। सो दैट इज द काइंड ऑफ माइंडसेट दैट कम्स इन। सो इसलिए एचआर मैनेजमेंट ये चीजों पे फोकस करता है, स्ट्रैटेजिक फंक्शन पे फोकस करता है। जैसे मैंने बताया, स्ट्रैटेजिक फंक्शन बेसिकली इससे कनेक्टेड है, जैसे कि आप क्लियरली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को डिफाइन करो, एंड ऑर्गेनाइजेशन के जो भी आपके गोल्स हैं वो आप एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस से लिंक करो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप देखोगे एम्प्लॉयज भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड एंड हैप्पी रहते हैं, बिकॉज एम्प्लॉयज को लगता है वाओ यार, आई मीन सुपर, मुझे एग्जैक्टली पता है कि मुझे कौन से गोल्स अचीव करने हैं, ठीक है। एंड मैं गोल्स अचीव भी करूंगा तो मुझे पता है मुझे प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। एंड प्लस ये जो गोल्स मैं अचीव कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं ऑर्गेनाइजेशन को कितने डिफरेंट हाइट्स पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। सो व्हाट्स हैपनिंग, आप एक मोटिवेशन दे देते हो वो एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस की वजह से, ठीक है। सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन इमेजिन पहले जमाने में जब ये स्ट्रैटेजिक फंक्शन था ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था मैं ऑर्गेनाइजेशन को क्या कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, ठीक है, कोई मोटिवेशन ही नहीं था, बस डेली काम था, आओ काम करो जाओ, आओ काम करो जाओ, ऐसे सालों साल बस मैं वही कर रही थी विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रमोशन, मोटिवेशन,
सो गाइज ऐसा काइंड ऑफ इन्वायरमेंट तो आजकल के टाइम में नहीं चलेगा. सो एज एन एचआर हमारा माइंडसेट जो है वो बहुत ज्यादा चेंज होना चाहिए, ठीक है. बिकॉज अगर आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट को ये प्रपोज नहीं करोगे कि कैसे एम्प्लॉयज को वी हैव टू कीप ऑन द टोज, ठीक है, कैसे एम्प्लॉयज को हम बेसिकली एंगेज रखें, हम कैसे एम्प्लॉयज के ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट ना करें, हम एज अ एचआर अगर ऑर्गेनाइजेशन का इतना ध्यान नहीं देंगे तो डेफिनेटली आप देखोगे क्या होगा. इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट इन द लॉन्ग रन. आप देखोगे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है एम्प्लॉयज को रिटेन करना. एंड आपका ही काम बढ़ेगा एज एन एचआर, क्योंकि अगर आप लोगों को रिटेन नहीं कर पाओगे तो आपको रिक्रूटमेंट उतनी ज्यादा करनी पड़ेगी. सो ये साइकिल है गाइज. आप जितने लोगों को रिटेन करोगे, लोगों को खुश रखोगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन से जाने नहीं दोगे, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि बिकॉज आप लोगों को रिटेन कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि जो भी लोग हैं, ठीक है, वो गए ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन से. सो ऑटोमेटिकली रिक्रूटमेंट का काम कम हो जाएगा आपका, ठीक है. आप बस उनको ही रिक्रूट करोगे जो न्यू पोजीशंस है ऑर्गेनाइजेशन में, बट उनको रिक्रूट करने की जरूरत है ही नहीं आपको, क्योंकि लोग जो है छोड़ते ही नहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन को. तो इट्स लाइक ऑल कनेक्टेड. प्लस अगर आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशन में अगर कहीं ऐसा लूप होल हो जहां पे लोग हैप्पी नहीं है, ठीक है, एचआर पूरा टाइम सिर्फ रिक्रूटमेंट में ही उसका टाइम जाता है, ठीक है. ऑल द टाइम जस्ट रिक्रूटिंग पीपल. एंड ट्रस्ट मी, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा हो क्योंकि लोग रुक नहीं रहे, आप देखोगे ऑटोमेटिकली ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में ग्रोथ होना बहुत मुश्किल है गाइस. बिकॉज आप न्यू लोग को लेकर आ रहे हो, उसको सिखा रहे हो, उसको ट्रेन कर रहे हो, उसमें भी आपके पैसे जा रहे हैं, राइट. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी आप इतना पैसा डाल रहे हो, एंड वो लोग रुक ही नहीं रहे, वापस छोड़ के जा रहे हैं, वापस आप न्यू लोग को लेके आ रहे हो. इट्स अ साइकिल, विशियस सर्कल है ये, ठीक है. सो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर लोग ही नहीं रुक रहे कि ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी सेल्स बढ़े, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम बराबर से हो. दैट्स रियली नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट. सो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है सबसे पहले, इसलिए आजकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए गाइस लोगों को रिटेन करना इतना इंपॉर्टेंट हो गया, यू विल नॉट बिलीव. एक एम्प्लॉय अगर पेपर डालता है, ट्रस्ट मी, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रही हूँ, सो पूरा इन डिटेल रिसर्च होता है कि ये एम्प्लॉय ने पेपर क्यों डाला. ठीक है, अगर एम्प्लॉय अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोच रहा है तो ये फोकस करना जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल ग्रोथ उसकी क्यों नहीं हो पा रही है. अगर उसको कोई डिससैटिस्फैक्शन है, क्या डिससैटिस्फैक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ लैक कर रहा है. सो इट्स लाइक इतना डीप रूटेड आजकल R&D हो गया है ना गाइस, कि ऐसा नहीं रहा है, पहले जैसा नहीं रहा है. पहले कैसे होता था, एम्प्लॉय ने पेपर डाला, इमीडिएटली एचआर ने क्या किया, दूसरा एम्प्लॉय ढूंढना स्टार्ट कर दिया. दैट काइंड ऑफ सिनेरियो हैज बिकम वेरी लेस. इसलिए आप देखोगे परफॉर्मेंस अप्रेजल, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ओके, एग्जिट इंटरव्यूज, एग्जिट मैनेजमेंट, ये जब एचआर जनरलिस्ट की बात करें गाइस, सो ये सब चीजें पे बहुत फोकस है आजकल, ठीक है. एचआर जनरलिस्ट मतलब ये पेरोल, कंप्लायंस और सिर्फ रिक्रूटमेंट नहीं रहा गाइस, दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशंस. बट बहुत और फंक्शंस है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आजकल गेन कर चुके हैं एचआर जर्नलिस्ट में, ठीक है. सो कॉम्पेंसेशन इज डिसाइडेड एज पर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. मैंने बताया आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, जो टारगेट से अगर आपने वो अचीव किया है तो आपको मिलेगी सैलरी इंक्रीज और प्रमोशन. आपने टारगेट नहीं अचीव किया है, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा. दैट इज द करंट कॉन्सेप्ट. इसलिए लोग आजकल इतने कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, इसलिए वर्क एनवायरमेंट्स इतने कॉम्पिटिटिव हो गए हैं आजकल, राइट. पॉलिसीज जो है आजकल आप देखोगे कि ऐसे बनती है जो एम्प्लॉयज को ही माइंडसेट में रखा जाए, ठीक है. हमको पता है आजकल रिमोट वर्किंग इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, हाइब्रिड वर्किंग है, वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस, मतलब ये सब क्यों बना है, ठीक है. फीमेल्स को इतनी पॉलिसीज उनके बेनिफिट्स के लिए बनी जाती है आजकल, मेटर्निटी पॉलिसी, फीमेल्स को बेबी होने के बाद वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज, फिर जो बेबीज हैं उनको ऑफिस लेकर आने की पॉलिसीज, क्रैश फैसिलिटीज. ये क्यों बना है, ये सब इसलिए बना है कि मेरे एम्प्लॉयज को कंफर्टेबल रखना चाहिए, मेरे एम्प्लॉयज को अच्छा फील होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है. मेरे एम्प्लॉयज को वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, ठीक है. सो इट्स लाइक अ ओपन डोर पॉलिसी एनवायरनमेंट, कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट, जहां मैं अपने एम्प्लॉयज को फ्रेंड्स जैसे ट्रीट करती हूँ, कलीग्स जैसे ट्रीट करती हूँ, एंड ट्रीट करती हूँ कि इन सबको हैप्पी स्पेस हमको साथ में मिलके बनाना है. दैट काइंड ऑफ कल्चर हैज स्टार्टेड इन HR मैनेजमेंट. ऑलराइट एवरीवन, any questions, anyone, any doubts? Yes, sir. Yes.
हाँ, इसमें अगर जैसे कुछ अगर एंगेजमेंट एक्टिविटी जो पार्ट आता है, हम्म। तो वो भी क्या मतलब वो ये जर्नलिस्ट का ही पार्ट है आई थिंक। Yes, yes. So generalist profile, Mr. Sachin, right? Yes. So यस। Sachin जी, हाँ, एचआर जनरलिस्ट का काम है एम्प्लॉय एंगेजमेंट। तो इनफैक्ट आजकल बहुत बड़ा रोल हो गया है, बहुत बड़ा। वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। यस। पहले कैसे होता था, एम्प्लॉय एंगेजमेंट मतलब कभी दिवाली पार्टी कर लो या क्रिसमस पार्टी कर लो, साल में ऐसे 2-3 फंक्शंस कर लो, बस हो गया। बट अब वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहा है सिर्फ ये क्रिसमस और दिवाली फंक्शन से। इट्स लाइक यस। एम्प्लॉय एंगेजमेंट मतलब टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज करवाना, जो साल का टाउन हॉल अवार्ड फंक्शंस होते हैं, मतलब वो एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉय को मोटिवेट कैसे करना है, एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड कैसे रखना है, उस पे बहुत ज्यादा फोकस हो गया है। एंड जो भी एचआर जनरलिस्ट होते हैं उनका तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लाइक मैं अगर ये प्रोफेशन में 10 साल से हूँ, तो 10 साल से दिस हैज बीन अ पार्ट ऑफ माई रोल। ऑलवेज एम्प्लॉय एंगेजमेंट हमेशा मेरे रोल का एक पार्ट रहा है। ओके मिस्टर सचिन। अभी हाल फिलहाल में किस टाइप का लाइक एंगेजमेंट कर सकते हैं, अगर दिवाली से रिलेटेड कुछ ऐसा आप आइडिया देना चाहें। किससे रिलेटेड? दिवाली से रिलेटेड? हाँ। दिवाली से रिलेटेड बहुत एंगेजमेंट एक्टिविटीज हो सकती है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत चीजों पे डिपेंड करता है एंगेजमेंट, है ना। उस पे डिपेंड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का बजट कितना है। उस पे भी बहुत डिपेंड ओके। करता है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को अगर एंगेजमेंट करना है तो 1 लाख भी खर्च कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए तो वो तो 10-15 हजार भी खर्च कर सकता है। सो इट टोटली डिपेंड्स कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट ऑफ ऑल बजट क्या है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसी चीज है कि ये मैनेजमेंट का विजन से आना चाहिए। बहुत मैनेजमेंट्स आप ऐसे देखोगे कि उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयज का एंगेज रहना, उनको खुश रखना। बहुत ऐसे नहीं सोचते हैं। सो टोटली डिपेंड्स ऑन दैट। अगर आपके पास बजट अच्छा है दिवाली की जैसे फंक्शन के लिए, तो आप अच्छा लंच ऑर्गेनाइज करो एम्प्लॉयज के लिए। एक्टिविटीज रखो, बहुत सारी रंगोली मेकिंग कंपटीशन रखो, दिया मेकिंग कंपटीशन रखो। आजकल जो न्यू ट्रेंड चल रहा है कि स्टैंड अप कॉमेडियंस को बुलाते हैं, सो आप वो करो। कोई म्यूजिशियन को बुलाओ दिवाली में जो ओल्ड गाने गाए, 90s के गाने प्ले करे, ताकि आपके एम्प्लॉयज एंगेज हो उस चीज में। अच्छे स्वीट बॉक्सेस और हैम्पर्स पैक करवाओ अपने एम्प्लॉयज के लिए, उनको वो दो उसमें, एज रिटर्न गिफ्ट उनको वो दो। सो देर इज सो मच यू कैन डू, राइट। ओके। अच्छा, इसमें एक और है, जैसे एंगेजमेंट एक्टिविटी में कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, ये तो चलो दिवाली का हो गया तो ठीक है। अलग से जैसे अभी मैं अवेयर हूँ इससे, बड़ी प्रोग्राम, आई थिंक आप भी अवेयर होंगे इससे। किस चीज तो से? मैं इसके समझी नहीं अलावा थी, मैंने सुना नहीं, क्या बोल रहे हैं? एंगेजमेंट एक्टिविटी में एक हम्म। बड़ी प्रोग्राम है, बड़ी। बड़ी प्रोग्राम मतलब अवार्ड फंक्शंस वगैरह बोल रहे हैं आप? नो 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 नो, ये तो बड़ी दिवाली से प्रोग्राम, अच्छा, रिलेटेड। बड़ी बड़ी, ओके ओके, या हाँ। राइट राइट राइट। हाँ। तो हाँ, ऐसे भी और भी कोई ऐसा आइडिया है आपके पास में कुछ और इस टाइप से जो हम कर सकते हैं, बड़ी कर फंक्शंस, सके। यस यस, बड़ी फंक्शंस बेसिकली ट्रेनिंग फंक्शंस में आ जाते हैं, राइट, जो बड़ी फंक्शंस करते हाँ। हैं। ये। राइट। सो बहुत सारी चीजें हैं मिस्टर सचिन। बड़ी फंक्शंस एक है। देन डेफिनेटली आप अगर आप ट्रेनिंग की बात करें, सी एम्प्लॉय एंगेजमेंट का पार्ट बोल सकते हैं आप, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, ठीक है। सो इट इज लाइक अ पार्ट, बिकॉज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी आप क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को एंगेज ही कर रहे हैं एट द एंड, राइट। उनका डेवलपमेंट का ये। ही सोच रहे हैं। सो वैसे जैसे आप बड़ी फंक्शन बोल रहे हैं, तो आप लोग एग्जैक्टली कैसे करते हैं ये जो बड़ी फंक्शन करते हैं मिस्टर सचिन? हम तो बेसिकली जैसे कोई ज्वाइन करता है अपने ऑर्गेनाइज में, है ना, तो उसको अपने जो पुराने टीम मेंबर्स है हम उसको बड़ी बनाते हैं कि हम देखते हैं कि भाई ये बड़ी बनने लायक है नहीं है, उसको बड़ी बनाते हैं, और जो न्यू ज्वाइनिंग है हम उसके साथ में उसको रखते हैं, ताकि उसकी कुछ भी क्वेरीज ऐसी हो, ताकि वो एज ए फ्रेंड, एज ए दोस्त, वो उससे पहले डिस्कस कर सके। राइट, एंड तो बेसिकली फिर आप उसके बाद वो। ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम बोल रहे हैं। ये ऑनबोर्डिंग हाँ, प्रोग्राम है बिल्कुल। आपका, बड़ी प्रोग्राम जो है आपका ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम का पार्ट है, राइट, ओके। ये। सो यस, सो ये तो ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बेसिकली ये जो बड़ी बोल रहे हैं, आप बेसिकली हाँ। जो भी न्यू एम्प्लॉयज है सबको एक एक पर्सन दे देते हैं, जो उनके साथ वो कनेक्ट कर सके, वो ये। डिपार्टमेंट में उनको कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई इश्यूज हो, वैसे कर सके। सो ऐसे इस जैसे तो ये। बहुत सारे हैं। अभी ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम तो टोटली एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ऑल टुगेदर। जैसे कि मैंने बताया एम्प्लॉय एंगेजमेंट जैसा आजकल इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, वैसे ऑनबोर्डिंग भी आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कैसा होता है,
कोई एम्प्लॉय अगर एंटर करे, जैसे कि हमारे घर में कैसे मेहमान आ रहे हैं, अगर हम उसको कैसे कंफर्टेबल करें और उसको सब चीजें बताएं Yes. बराबर से, ट्रेन करें, सो चांसेस क्या होता है कि वो बहुत कंफर्टेबल होगा तो ज्यादा दिन रह के जाएगा, है ना। सेम वे ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम का भी वही कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे कि न्यू कोई बाहर से आ रहा है, न्यू इन्वायरमेंट और कल्चर से आ रहा है, तो अगर डेफिनेटली हम अपना इन्वायरमेंट और कल्चर उसको अच्छे से समझाए या उसको कंफर्टेबल करें उसके साथ, ठीक है, सो डेफिनेटली क्या होता है, वो एम्प्लॉय के छोड़ के जाने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। वैसे जैसे कि आप बोल रहे हैं ये बडी प्रोग्राम इज वन ऑफ देम। जैसे मैं आपको ये बोल रही अवार्ड फंक्शंस जो होते हैं, या जो आप मंथली बेसिस पे आप टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज करते हैं, वो एम्प्लॉय एंगेजमेंट का पार्ट होता है। मतलब ये सब सारी अलग अलग चीजें हैं। इफ यू गो टू सी, एम्प्लॉय एंगेजमेंट अलग हो जाता है, ऑन बोर्डिंग प्रोग्राम एक अलग कॉन्सेप्ट है टोटली। टोटली वो दो अलग अलग चीजें हैं। मतलब मेन फोकस सबका वही है कि हमको एम्प्लॉयज को रिटेन करना है ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज अ मेन फोकस। एम्प्लॉयज खुश होने चाहिए, रिटेन होने चाहिए, वो मेन फोकस है, बट कॉन्सेप्ट सब अलग अलग हैं ये बेसिकली। Okay. एनीवन एल्स, एनी डाउट्स गाइस? नो डाउट एनीवन? All right. I hope you guys enjoyed today's session, guys. Definitely hope to see you all in the HR Generalist program, because ये program अभी बस start ही हुआ है. So definitely जैसे हमारी classes बढ़ती जाएंगी, you guys will see that जैसे इन्होंने बात की आज, we are going to discuss on all aspects, onboarding, employee engagement. जब वो concepts आएंगे, जैसे मैंने plan किया हुआ schedule, so in detail हम सबकी बात करेंगे. So hope to see you all guys in the program. All right. Thank you so much, everyone.